Okay. So if you want to reply me privately, right? So you can reply to the account from which I'm speaking. Okay. जिस अकाउंट से मैं बात कर रहा हूँ वहां से आप प्राइवेटली मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. Okay. Let me hide this. Okay. So I think it will be much clearer to you now. Okay. So let us discuss about our test, which was MHM3218. This was our test code, MHM3218. Okay. Let's discuss about this today. We can do one thing. Wait. Yes. This will be better, I guess. So now you can chat with host account only because here I have to manage so many things. So you can directly chat with me. Give me a few minutes to adjust the screen. Okay. I think it is good. So if you want to reply me privately, now you know where you have to reply, right? In host account only. Okay. So let us see your questions. MHM3218. My voice is low. You are not able to hear me. So in MHM3218 आपको जो भी questions में doubt थे, just type in chat box. तो आपके 30 questions की exam थी. We are having 30 questions in exam. Okay. इसमें आपको जो भी questions में doubt है, just type in chat box. Okay. There were 30 questions. 30 marks की आपकी exam थी. Okay. So 14, 15, 17, 26. Okay, we'll see. 14, 15, 17, 26. Next. 14, 17, 19, 21. Okay. 19 and 21. चलो next. 228. Okay. 228. इसलिए तो आपको कंफ्यूजन हो गया ना करिश्मा, इसलिए तो मैं बता रहा था ये एग्जाम सबके लिए कंपलसरी थी, ये सबको देनी थी. ठीक है. चलो नो इशू. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जाम. ओके. आपके जो भी डाउट्स है तो सबसे पहले आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में. So let us see the question number 2 first. So in question number 2, they have asked you that if capital A equal to that in set A you are having 5 in one set, then it is null set, finite set, infinite set, or not a set. Okay, so let us check one by one. Is it null set? Give me some response. हाँ यस रिया, यू कैन गिव इट आफ्टर, बट अभी तो टेस्ट डिस्कशन हो रहा है रिया, तो अभी मतलब नहीं है एग्जाम का. ठीक है. चलो ए. चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल सेट? ये क्या होगा? नहीं तो रिया आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम देनी है तो
ये मीटिंग, हाँ यस, आपको क्लास लीव करना पड़ेगा और फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। रिया, डू वन थिंग, तो आपने एग्जाम नहीं दिए तो जस्ट लीव द मीटिंग एंड गिव एग्जाम। एग्जाम आई थिंक 1 hour की है, ओके, and after that you can use the recording. So see here, is it null set? Students, please give me some response. Is it null set? No, isn't it? Because ये set के अंदर एक element है, वो element आपका null set है. It is not a null set. No. Option B, it is a finite set. क्या ये finite set है? Finite set का मतलब क्या होता है? तो इसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। ओके, फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि एक एलिमेंट, टू एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फिक्स होने चाहिए कि कुछ है। ठीक है, अगर उस पर आपको डाउट है तो फिलहाल उसको छोड़ दो। सी, इनफाइनाइट सेट, क्या इनफाइनाइट सेट है? नहीं। एंड डी, नॉट अ सेट। भाई सेट तो वो है, राइट, बिकॉज वो सेट के अंदर है। तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सेट के अंदर सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज नल सेट, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ, यस, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अंदर। सो इज इट क्लियर नाउ? ये चीज क्लियर हो गई? ओके, नाउ आफ्टर क्वेश्चन 2 यू आर हैविंग डाउट इन, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 खत्म हो रहा है। ओके, 24 आल्सो, लेट अस सी। सो यू आर हैविंग डाउट इन 24th क्वेश्चन आल्सो। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। सो आफ्टर सेकंड क्वेश्चन यू आर हैविंग डाउट इन 14, 15, 17। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट। नाउ in question number 14, if you see it carefully, the range of the function cos greatest integer function x into pi. Good question. यहाँ पे आपको पूछा गया है range of function f of x is equal to cos of greatest integer function x into pi. Okay, so now, so you are now we are adding 12, 14, 17, 18, 20, 24. Okay, wait for 1 minute. So you are having 12, 14, then 17, 18, okay, then 20 and 24. 24 is here and then you have 20. Krishna, your audio is on. Okay, sorry, my mistake, my mistake. Yes. You are able to hear me now? I was asking range of greatest integer function of x. So वो क्या होगा range of greatest integer function of x? बोलो, greatest integer function x. Students, I require some response. You are not typing in chat box. Okay. I think there is some mistake over here. Wait. Technical errors I can see. जो लिखा हुआ था गया सर. If I can do something over here. Yes, z.
Right. Wait. I don't know what is the problem. Yes. Okay. Now see over here. So here I have to find, I know that range of greatest integer function x is z. Okay. So its output is z only. Z means integers. Okay. 0, positive integers, as well as here negative integers. Okay, like this. So if I multiply these values with pi, since my function is cos greatest integer function of pi. Okay, since my function is cos greatest integer function of pi, so if I apply this thing over here, so f of x will become cos, now greatest integer function of x वो आपका हो सकता है कोई भी z की वैल्यू, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? अगर मैं 0 रखूँ तो cos 0, राइट? फिर मुझे सब यहाँ पे cos पाई, cos 2 पाई, इस तरीके से चलता जाएगा। और सेम विथ नेगेटिव इंटीजर्स, cos माइनस पाई, cos माइनस 2 पाई चलता जाएगा। अब इसका आंसर आपको क्या आ सकता है बोलो? सो इफ यू आर टेकिंग cos 0, रिमेंबर यूनिट सर्कल, सो cos 0 is 1, cos पाई minus 1, cos 2 पाई अगेन 1 चलता जाएगा, ये -1, -1, so you'll be having values only -1 and 1. So here range of f का आउटपुट क्या हो जाएगा? So range of f will contain only two elements, -1 and 1. ये यहाँ पे पता चला only two elements, सिद्धार्थ, ठीक है? तो आपका क्लोज इंटरवल भी नहीं होगा, ना ही ओपन इंटरवल होगा, ओनली टू एलिमेंट्स -1 and 1, उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी, राइट? जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस यूनिट सर्कल कंसेप्ट। ओके, आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, and now suppose these are your x axis and y axis, ओके, सो अब हमें पता ही है कि ये आपका पॉइंट होगा ए, ओके, 1,0, यहाँ पे आपकी वैल्यूज होंगी 0, 2 पाई, 4 पाई एंगल्स की, और यहाँ पे आपके एंगल्स होंगे पाई, 3 पाई, ऑल ऑड मल्टीपल्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कॉस की वैल्यू मिलेगी 1, बिकॉज इट इज 1,0, ये आपका सी पॉइंट था, -1,0। इज इट क्लियर नाउ? तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो वैल्यू मिलेगी, 1 एंड -1। क्या ये 1 एंड -1 में किसी को डाउट है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। Okay, so I'm repeating this once again. Okay, so see here, Sanya, now. So in this question, they are asking us range of f of x is equal to cos greatest integer function x into pi, isn't it? So here, if I take this, give me 1 minute. Okay. So here they are asking us range of cos greatest integer function x into pi.
isn't it? Now, see over here. We all know that range of greatest integer function of x. कि अगर आपके पास greatest integer function x है, तो उसकी रेंज क्या होती है? उसका आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा, एज पर इट्स नेम सजेस्ट, -2, -1, 0, 1, 2। तो वो सारी वैल्यू अगर आप फंक्शन में रखोगे, आपका फंक्शन है cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा cos 0, cos पाई, cos 2 पाई, cos माइनस पाई, cos माइनस 2 पाई, लाइक दैट। ओके, अब हमें ये देखना है कि यहाँ इन सभी पॉइंट्स पे हमें cos की वैल्यू क्या मिलेगी। ओके, नाउ सी इट केयरफुली। अब यहाँ पे हमें cos की वैल्यूज क्या मिल सकती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ दिस यूनिट सर्कल, ओके, जब आपका ये 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, सो एट ऑल द इवन प्लेसेस योर कॉस विल बिकम 1। ओके, मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे इवन मल्टीपल हैं, cos 0, 2 पाई, -2 पाई, वहाँ पे हमें वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है? एंड जो भी हमारे ऑड मल्टीपल्स हैं, ये 3 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, वहाँ पे हमें वैल्यू -1 मिलेगी। तो हमें ये फंक्शन का आउटपुट सिर्फ 2 वैल्यू ही मिलेंगी, आइदर +1 आइदर -1, और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो इज इट क्लियर नाउ? Shall we go to next question? Okay, is it clear, Sanya? Okay. Now see, so this was your question number 14. Question number 14 के आसपास वो पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में. So let us see that first. Okay, now see. नहीं ऐसा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेट में स्मॉलर नंबर आपको पहले लिखना है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है। यू कैन राइट एनी नंबर एट एनी प्लेस। सो क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इक्वल टू 2, 3, 4, 5, सी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5. So if A is equal to 2, 3, 4, 5, then which of the following relations is a function from A to itself? Okay. Which of the following relation is function from A to A itself? मतलब वो आपके A to A में function होने चाहिए। चलो quickly type in chat box what is the condition for function? ठीक है, function के लिए condition क्या होती है? कब मैं बोल सकता हूँ कि वो function है? और मैं यहाँ पे सारे options लिख रहा हूँ। So your options A, option A, f1 contains x comma y such that y equal to x plus 1. Yes, Samarth. Okay. Option B, we will check about this all the options. F2 is x comma y where x plus y is greater than 6. So F2 contains x comma y where x plus y is greater than 6. और आपको A से ही चेक करना है, राइट? x comma y की वैल्यू कहाँ से लेनी है? फ्रॉम A only. Now in C, F3 equal to x comma y, or f3 contains x comma y such that x greater than y, and in D, f4 is equal to x comma y such that x plus y equal to 7. Okay, चलो step by step करके देखते हैं. So yes, your answers are right. ये फंक्शन कौन होता है जिसकी एक या which is having only one and one image, or which has only one and only one image? Yes, for every pre-image there is only one and one image. Okay, और यहाँ पे क्वेश्चन ने आंसर दिया है. So let us check that कि वो आंसर right है या wrong. So we'll go step by step. So y equal to x plus 1. So for option A, अगर आप option A के लिए सोचें आंसर्स, so y equal to x plus 1, तो उसके लिए आपकी क्या पॉसिबिलिटीज आएगी स्टूडेंट्स? if y equal to x plus 1, तो अगर आप 2, 3, 4, 5 ले रहे हो, ओके, तो 2 के लिए 3 मिल जाएगा, 3 के लिए 4 मिल जाएगा, 4 के लिए 5 और 5 के लिए 6 मिलेगा, राइट? सो फॉर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, विच इज नॉट बिलोंग्स टू a. ठीक है, तो ये आपका फंक्शन तो है, बट ये फंक्शन आपका a पे डिफाइंड नहीं है.
ओके, इट शुड बी फ्रॉम ए टू ए ओनली। चलो x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, वो दोनों का सम करो तो ग्रेटर देन 6 आए। सो 2 प्लस 3 वो तो 5 है, 2 प्लस 4 6 है, नहीं ग्रेटर देन 6 मतलब आप उसमें सिर्फ ले सकते हो 2,5, फिर 3,5 भी ले सकते हो, 3,4 भी ले सकते हो। तो ये आपका, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सो 2 पे आप 5 लोगे तो भी ग्रेटर देन 6 आएगा, 2 प्लस 5, ठीक है। फिर 3 पे भी आपका 5 आ रहा है, राइट। और या अगर आप इसको यहाँ पे देखो, नहीं तो 1 to 1 मैनी टू वन, ये आपका 1 to many बन रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखूं, तो 2 5, ठीक है, 3 5 4 5 ये सब पॉसिबल है। तो 2 5 3 5 4 5 विच इज बिकमिंग योर मैनी टू वन, सो इट इज नॉट फंक्शन, इजंट इट, क्योंकि मैनी टू वन डिफाइन नहीं होगा। फिर x ग्रेटर देन y, चलो अब x ग्रेटर देन y के लिए भी सेम कंडीशन होगी। अगर मैं मान लो x ले रहा हूँ 3 4 5, y ले रहा हूँ 2, तो ये भी ग्रेटर देन 2 है, ये भी ग्रेटर देन 2 है, ये भी ग्रेटर देन 2 है, तो सेम कंडीशन मैनी टू वन। अब x प्लस वाई इक्वल टू 7, फोर्थ कंडीशन, और यहाँ पे आप वैल्यू ले सकते हो 2 3 4 5। चलो तो 7 आपका होगा 2 और 5 एंड 3 और 4, इसके अलावा और कोई होगा? 2 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा। सो यू विल बी हैविंग एलिमेंट्स फॉर 2 y is 5, for 5 x y is 2, for 3 it is 4, and for 4 it is 3, isn't it? तो ये आपका 1 to 1 ही हो रहा है, ओके। एंड सिंस ये आपका 1 to 1 ही हो रहा है, सो दिस इज योर फंक्शन। इज इट क्लियर नाउ? तो बाकी कोई आपके नहीं होंगे, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। ओके, सो समर्थ आपने बी लिखा है शायद, चेक योर आंसर। ओके, बी बी क्यों नहीं होगा पता चला, ये सबको क्लियर हुआ? ओके, यस। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 12 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 14 हो गया। नाउ यू आर गोइंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15। Now let us see question number 15. Now here they are asking us domain of function f of x is equal to square root log x base 0.5. So we have to find domain of function f of x is equal to square root log x base 0.5. चलो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। डोमेन मींस सेट ऑफ इनपुट्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये डिफाइन होना चाहिए कि if it is square root log x base 0.5, that means your log x should be greater than or equal to 0. So for square root, my log x base 0.5 should be greater than or equal to 0. And for log x, अगर आपका log x डिफाइन होना चाहिए, उसके लिए x की क्या कंडीशन होगी? ठीक है, बोलो लॉग कहाँ पे डिफाइन होगा, कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है आपका लॉग? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी आंसर दें। राइट, लॉग आपका कहाँ पे डिफाइन होता है? ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इजंट इट? यस। सो x कैन बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लॉग 0 भी आपका डिफाइन नहीं है। चलो अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। अब अगर मैं यहाँ पे बेस जो है 0.5, उसको अगर उस तरफ भेज रहा हूँ, तो एक चीज मैंने आपको दिखाई थी सस्पेंस के साथ, अगर बेस आपका लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि वही रहेगी? बताओ। मैंने बोला था वो सस्पेंस हम देखेंगे क्लास 12 में। ओके, अगर बेस 0.5 में उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बचेगा x, ठीक है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वो 0.5 टू द पावर 0 हो जाएगा। तो बीच में ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा?
Please give me response quickly. Okay, मैंने आपको बोला था याद करो, थोड़ा तो याद होना चाहिए. अगर आपका बेस, वेरी गुड, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी. ठीक है, फॉर लॉग you can add this in formula book. Okay, so I'm telling you this once again. So if in case of logarithm and if you are having an inequality, so if its base is greater than 1, inequality will remain as it is, or if base is less than 1, you have to change the inequality, right? So this is for the case of inequality in case of logarithm. Okay, so whenever you are having inequality in case of logarithm, you can use this. Okay. So here x is less than or equal to 0.5 to the power 0. 0.5 to the power 0 is 1. So x is less than or equal to 1. Here x is greater than 0. And here x is less than or equal to 1. So after combining them, or I can just say combining both of them, I can write 0 less than x less than or equal to 1. Is it clear? So if you observe your options, option E, open interval 0 to 1. Okay. Yes, Ovish, इसी अकाउंट पे मैसेज करना है. Okay. So shall we move to next question? ये question पे clear हो गया? Question number 15. Right. Question 17 देखे अब? Okay. I require response from each and everyone. Now let us see question number 17. So the range of the function, अब वही सेम cos वाला केस है, जैसा cos का था वैसे ही sin के लिए है. So range of the function f of x is equal to sin greatest integer function x into pi. तो अभी हमने देखा कि अगर वो आपका greatest integer function x है तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा z के टर्म्स में, राइट? मतलब z मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे. और अब जब आपको कॉम्प्लेक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक. सो z मींस आपको इंटीजर्स मिलेगा. ओके, एंड अगर वो आपको सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं, दैट मींस नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिल सकती हैं साइन की. तो सारी चीजें वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. सो साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन -2 पाई, ऐसे सारे एक आपको पाई के इवन मल्टीपल्स मिलेंगे. फिर ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे जो इसमें आपके इंक्लूड होगा साइन पाई, साइन -पाई, साइन 3 पाई, साइन -3 पाई. तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें अगेन इन यूनिट सर्कल, तो ये दोनों पॉइंट तो आपके होते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, राइट? इवन एंड ऑड. ओके, अगर ये वाला पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे. ओके, सो ए पे और बी पे, या ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी साइन की? 0, isn't it? Please give me some response. You are not giving response, students. This is 1 comma 0 and this is -1 comma 0. तो साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, तो वो तो 0 ही हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसका आंसर एक ही आएगा. सो हियर ऑल वैल्यूज आर सेम एंड दिस वैल्यू इज 0. सो देयरफॉर रेंज ही पूछा ना. यस, सो रेंज विल बी only one element, or I can say singleton element, 0. So is it clear now? That answer is B. Okay. After 17, we are having doubt in 18.
So in question number 18, it is given to you that if function from R to R it is defined by f of x is equal to 2x, x square and 3x, where 2x is defined for x greater